لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ تعالی ہم پارہ نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ پارہ نمبر 2 اس کے اندر کن کن خاص چیزوں کا ذکر کیا گیا اور اس پارہ کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کے کون کون سے مواقع ہیں، آج اس خلاصے کے ساتھ ہم اس پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا وہ ہے تحویل قبلہ کا۔ تبدیلی ایک امتحان ہوتا ہے
اور زندگی میں موسم، جگہ، حالات کی تبدیلی کو ہمیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے. جس طرح تحویل قبلہ کا حکم ہمارے لیے ایک نیا حکم تھا، بالکل اسی طرح زندگی میں بھی ہمیں اپنے موسموں کے مطابق، حالات کے مطابق اس کو تبدیل کرنے میں خوشی محسوس کرنی چاہیے. پھر پارہ نمبر 2 کے اندر مومن کی زندگی کا مقصد بتایا گیا کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے. پھر اگر دیکھا جائے نمبر 3 پہ، تو کسی بھی غلط کام کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اس کا چھوڑنا بھی اللہ کی مدد سے ہوتا ہے. تو 3 پوائنٹ ابھی ہم نے پارہ نمبر 3 کے اندر دیکھے. تبدیلی قبلہ کا حکم ہماری زندگی کی تبدیلی کے ساتھ ریلیٹ اگر کیا جائے تو انسان کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے حالات اور مواقع آتے ہیں جن میں اس کو خوشی سے ان حالات کو تسلیم کر لینا چاہیے. اللہ کا ذکر نمبر 4 صحیح طریقے پر اور کثرت سے کرنا چاہیے. نمبر 5 اس پارے کے اگر خلاصے کو دیکھا جائے پارہ نمبر 2 کے، تو آزمائش اور امتحان انسان اس کا ضرور شکار ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی کا انحصار صرف خوشیوں پر نہیں ہے بلکہ آزمائش انسان کی زندگی کا حصہ ہے. پھر صفا مروہ کا ذکر کیا گیا، حلال اور طیب کا ذکر کیا گیا، حج اور عمرے کی بات کی گئی، مفادات کے تصادم کا ذکر کیا گیا، نیکی کی اقسام کو بیان کیا گیا، اور آخرت کی طلبگاری، عقیدہ کی اہمیت، قانون طلاق اور دین کی خدمت کیسے کی جائے گی، یہ سارا ہم انشاءاللہ تعالی اس پارہ میں دیکھیں گے. تو اپنے پارے کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اب کہیں کہ بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ پر سے جس پر وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، تو کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. پارہ نمبر 2 کا جو آغاز جو تحویل قبلہ کے حکم سے کیا گیا، جب کعبہ قبلہ نماز مقرر ہو کر یہود کا قبلہ متروک ہو گیا تو یہ ناگواری کا ذریعہ بنا یہودیوں کے لیے. اور یہاں پر جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس پہ جو اعتراض کیا یہ ان کا اعتراض بے وقوفانہ تھا. اللہ رب العزت کی ساری صفتیں ہیں، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. اللہ ہی مالک بھی ہے، ملک بھی اسی کا. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جو جس سمت کو چاہتا ہے وہ سمت مقرر فرما دیتا ہے. سیقول السفہاء، اور قبلہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں سمت اور توجہ. اب یہ ظاہر ہے کہ مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف ایک وحدہ لا شریک اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے. نوح علیہ السلام تک سب کا قبلہ یہی بیت اللہ ہی تھا، اور طوفان نوح کے وقت پوری دنیا غرق ہو کر تباہ ہو گئی اور بیت اللہ کی عمارت چونکہ منہدم ہو گئی. اس کے بعد خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ کر دی. اور اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل
ताकि वो तुम गवाह लोगों पर और वो रसूल तुम पर गवाही देने वाले। उम्मत वसत को उम्मत वसत क्यों कहा जाता है? उम्मत वसत खैरुल उमूर, वसत का मतलब होता है खैरुल उमूर पाने वाली उम्मत, और अफजलुल अशिया को भी वसता कहा जाता है। अबू सईद खुदरी ने इसकी तफसीर में लिखा है कि वसत से मुराद अदल है, जो बेहतरीन के मानों में आता है, और यहाँ पर उम्मत मुहम्मदिया को वसत कहकर पुकारा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो उम्मत हैं जिनको दरमियानी उम्मत, खैरुल उमूर और अफजलुल अशिया उस उम्मत को करार दे दिया गया। उम्मत मोहम्मदिया को हर किस्म में एतदाल की जरूरत है ना। हमें भी अपनी जिंदगी में मुतदल रहना चाहिए, अमल में, इबादत में, इक्तिसादी और माली एतदाल में, माशरती और तमदनी एतदाल, हम सबको अपनी जिंदगी में एतदाल रखना है, क्योंकि हम मुतदल उम्मत हैं। वमा जअलना क़िबलत अल्लती कुन्त अलैहा, और नहीं मुकर्रर किया था हमने वो किबला कि जिस पर तू पहले था, मगर इस वास्ते की मालूम करे कि कौन ताबे रहेगा, कौन पैरवी करेगा रसूल की, और जो कोई फिर गया उल्टे पांव, बेशक ये बात बहुत भारी हुई मगर उन पर जिनको राह दिखलाई अल्लाह ने। वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, और अल्लाह ऐसा नहीं कि जाया कर दे तुम्हारा ईमान, बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत शफीक और मेहरबान है। यहाँ पर ईमान के जाया होने से क्या मुराद ली गई? ईमान के जाया होने से मुराद नमाज का जाया कर देना, और ईमान के जाया होने से मुराद दीन से मुनहरिफ हो जाना, और जो अपनी नमाजों को जाया कर देता है उसका ईमान जाया हो गया। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, बेशक हम देखते हैं बार बार उठना तेरे मुंह का आसमान की तरफ, तो अलबत्ता हम फेरेंगे तुझको जिस किबले की तरफ तू राजी हो जा। अब फेर अपना मुंह अपना मस्जिद हराम की तरफ, और आपके मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम सब देख रहे हैं, और चूंकि हमें आपकी खुशी पूरी करना मंजूर है, इसलिए हम वादा करते हैं कि आपको इसी किबला की तरफ मतवज्जा कर देंगे जो आपको पसंद है। अब से अपना चेहरा नमाज में मस्जिद हराम की तरफ कर लीजिए, और ये हुक्म सिर्फ आपके लिए मखसूस नहीं था बल्कि सब लोग, पैगंबर और उम्मतों सबके लिए था। और जिस जगह तुम हो अपना मुंह किबले की तरफ कर लो, और वल्लज़ीना ऊतुल किताब, और जिनको मिली है किताब अलबत्ता जानते हैं कि यही ठीक है उनके रब की तरफ से, और अल्लाह बेखबर नहीं इन कामों से जो वो करते हैं। तवीले किबला का जो हुक्म है और इसका जो बार बार जिक्र किया गया, इसकी हिकमत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस मौका पर जिस वक्त चाहे जैसा हुक्म उतारना चाहे वो उतार सकता है, और मोमिन को हर वक्त तैयार रहना चाहिए अल्लाह का हुक्म हर वक्त मानने पे। वलाइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब, अगर तू लाए अहले किताब के पास सारी निशानियां तो भी ना मानेंगे तेरे किबले को, और ना तू माने उनको किबला। वमा बअज़ुम बिताबिन किबलता बाज़, और ना इनमें से एक मानता दूसरे का किबला, और अगर तू चला इनकी ख्वाहिशों पर इसके इल्म के आने के बावजूद तो बेटा तू हो जाएगा जालिमों में से। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया जा रहा है कि आप उम्मत मुहम्मदिया को हदायत और इस्लाम की बातें पहुंचा दें, और इनकी बातों पे ना आए, इनके मामलात में फिक्र ना करें। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानने वाला है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून, और जिनको हमने किताब दी पहचानते हैं इसको जैसे पहचानते अपने बेटों को, और बेशक एक फिरका उनमें से छुपाते हक को जानबूझकर। अल हक मिन रब्बिक, जो तेरे रब का हक है, जो तेरा रब कहेगा, फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, और ना तो शक करने वालों में से हो जाओ। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यूं पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते थे।
बेटों की पहचान जैसे कोई बेटों को पहचानते हैं, ये यूं पहचानते थे, क्योंकि बच्चों की पहचान में कभी शुबा हो ही नहीं सकता। माँ बाप की मिसाल नहीं दी यहाँ पर, हालांकि आदमी अपने माँ बाप को भी आदतन वो पहचानता है। वजह ये है कि बेटों की पहचान माँ बाप की पहचान की निस्बत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंसान अपने बेटों को इब्तिदाई पैदाइश से अपने हाथों में पालता है। इसके बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जो माँ बाप की नजर से ओझल रहा हो। इसलिए यहाँ पर बेटों की पहचान के साथ इसको तशबीह दिया गया, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्ताबिकुल खैरात, और हर किसी के वास्ते एक जानिब है, यानी किबला को वो मुंह करता है इसी तरफ, सो तुम सबकत करो नेकियों में जहां कहीं भी तुम हो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, और तुम जहां से भी सफर के लिए निकलो अब तक वो नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ कर लो, और यकीनन यही बात हक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आई है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। और जहां से भी तुम निकलो अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ करो, और तुम जहां कहीं हो अपने चेहरे को उसी तरफ रखो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ हुज्जतबाजी का मौका ना मिले। अलबत्ता उनमें जो लोग जुल्म के होकर हो गए, तो उनका कुछ खौफ ना रखो, हाँ मेरा खौफ रखो, और ताकि मैं तुम पर अपना इनाम मुकम्मल कर सकूं, और ताकि तुम हिदायत हासिल कर लो। तबीले किबला का यहाँ पर तीसरी दफा हुक्म आया था। पहले 2 दफा हमने पीछे तबीले किबला का हुक्म पढ़ा है। 3 मरतबा पहले फवल्ली वजह का शतल मस्जिद हराम कह के, और 2 मरतबा तकरार के साथ। ऐसा क्यों? तबीले किबला का हुक्म मुखालिफिन के लिए तो शुरू शगफ का जरिया था, खुद मुसलमानों के लिए भी इबादत का एक अजीम इनकलाब था। अगर ये हुक्म ताकीदात के साथ बातकरार ना लाया जाता तो कुलूब का इत्मीनान और सुकून आसान ना होता। तो दिल के इत्मीनान के लिए और हक़ुल यकीनी के लिए बार बार इसका तकरार किया गया, और फिर क्या किया गया? वस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़िए। हमें जब भी किसी नेकी का मौका मिल जाए तो उसके करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इसके टालने और तग़यीर करने से तौफ़ीक़ सल्ब हो जाती है। फिर आदमी काम कर ही नहीं सकता, वो नमाज रोजा हो या हज हो सदका हो। तो हमें क्या करना चाहिए? नेकियों में फौरन आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि सूरह अल-फाल के अंदर आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाह वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के रसूल के कहने को बुझा लाओ, जबकि रसूल तुमको तुम्हारी जिंदगी बख्श चीज की तरफ बुलाते हैं। और जान रखो कि अल्लाह ताला आड़ बन जाया करता है आदमी के और उसके कल्ब के दरमियान। इसलिए हमें नेकियां फौरन कर लेनी चाहिए। जो ही दिल के अंदर किसी नेकी का जज्बा या ख्वाहिश उठे, फौरन नेकी करें। आगे हम देखते हैं आयत नंबर 151, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना, जैसा कि भेजा हमने तुम्हें एक रसूल भेजा जो तुम्हारे सामने हमारी आयतों की तिलावत करता है और तुम्हें पाकीज़ा बनाता है और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते। लिहाजा मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। फस्कुरूनी अज़कुरकुम, जिक्र के असली मानी याद करने के हैं, जिसका ताल्लुक कल्ब से है, जुबान से है। जिक्र करने को भी जिक्र इसलिए कहा जाता है कि जुबान तर्जमाने कल्ब है। इससे मालूम हुआ कि जिक्र जुबानी भी मोतबर होता है। जिक्र को अगर दिल के साथ किया जाए तो दिल का हाजिर होना जब जिक्र में शामिल हो जाएगा तो उसका तो रूह के साथ ताल्लुक बांध दिया जाता है ना। अबू उस्मान से किसी ने ऐसी हालत की शिकायत की कि हम जुबान से तो जिक्र करते हैं मगर कलूब इसकी कोई हलावत महसूस नहीं करते। आपने फरमाया, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने तुम्हारे एक यानी जुबान को तो अपनी अतात में लगा रखा है।
اس لیے فوراً ابھی سے پڑھیے سبحان اللہ، الحمدللہ. اور یہ جو ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے. قرآن کو بھی ذکر سے تشبیہ دی گئی. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی تم مجھے اطاعت اور احکام کے ساتھ یاد کرو، میری بات مانو، میں تمہیں ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا. اللہ اکبر. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انسان کا کوئی عمل اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے میں ذکر الہی کے برابر نہیں ہے. اور پھر حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں مدد تو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کے اصلی معنی ہوتے ہیں اپنے نفس کو روکے رکھنا، اس پر قابو پانا، اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا. نمبر 1. نمبر 2، اطاعت اور عبادات کی پابندی کرنا، اپنے آپ کو مجبور کرنا. اور نمبر 3، مصائب اور آفات پر صبر کرنا. یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں ہیں. اور صابرین ان لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہوں. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ صابرین کہاں ہیں، تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہنے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے پکاریں گے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. پھر نماز سے مدد طلب کرنے کو کہا گیا. نماز تمام عبادات میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ پیش کرتی ہے. تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ صبر اور نماز سے مشکلات کا حل نکالنا ہے اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، مارے گئے، ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا احساس نہیں رکھتے، احساس نہیں ہوتا. اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی کر کے. اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایات ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. اللہ کی طرف جانے والے کون لوگ ہیں؟ صبر کرنے والے. اور تسکین قلب کا بہترین علاج جب ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ایک جملے کے ساتھ اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ساری مصیبتیں، رنج اور غم تسلی میں بدل جائیں گے. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی. تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو کچھ گناہ نہیں اس پر کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، اور جو کہ اپنے خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارا، صاف حکم اور ہدایت کی باتیں، بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول چکے ان لوگوں کے لیے واسطے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت ہے اور اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. ان پر لعنت کرنے والے مگر جنہوں نے توبہ کی اور درست کیا اپنے کلام کو اور بیان کر دیا حق بات کو تو ان کو معاف کر دیتا ہے، تو ان کو معاف کرتا ہوں اور میں ہوں التواب الرحیم، بڑا معاف کرنے والا، نہایت مہربان. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے، کافر ہی ان پر لعنت ہے، اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی اور سب کی. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان پر عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. یہاں پر مہلت کی بات کی جا رہی ہے نا، کہ جو کفر کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، اسے مہلت بھی چھین لی جاتی ہے، اور زندگی کے آخری سانس آنے سے پہلے اس کو مہلت دے دی گئی.
हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या रब, सांस आखिरी चलने से पहले आखिरी चलने से पहले हमारे लिए एक ऐसा अमल और जन्नत के करीब होने वाले ऐसे अमाल करवा दे जिससे हमारी जुबान से ऐसा कलिमा निकले जो तेरी खुशनुदी का बायस बन जाए। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। माबूद तो सब का एक ही माबूद है, तुम्हारा रब एक ही है, इसके सिवा कोई रब नहीं, जो सब पर मेहरबान और बहुत मेहरबान है। बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में, रात दिन के लगातार आने जाने में, उन कश्तियों में जो लोगों के फायदे का सामान लेकर समंदर में तैरती हैं, उसको पानी में, उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा और इसके जरिए जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदगी बख्शी, और इसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हवाओं की गर्दिश में और इन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबेदार बनकर काम में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए निशानियां ही निशानियां हैं जो अपनी अकल से काम लेते हैं। यानी मुशरिकीन अरब के लिए व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, ये अकीदा ताजुब घेर था उनके लिए ये अकीदा उनके लिए मुश्किल अमल था ना, क्योंकि वो इलाह को इलाह नहीं समझते थे और वो अपने रब के, हम सब का रब जो मबूद बरहक है, उसके साथ बहुत से शरीक बना लेते थे। तो ये तौहीद के वसी मफ़हूम को ये आयत वाज़िह करती है। व मिनन नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, और बात लोग वो है जो बनाते हैं अल्लाह के बराबर औरों को, यानी अल्लाह के अलावा औरों को उसमें शरीक करार देते हैं और इसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह की मोहब्बत रखनी चाहिए। और जो लोग ईमान ला चुके हैं और वो अल्लाह ही से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, काश के जालिम जब दुनिया में कोई तकलीफ देखते हैं उसी वक्त ये समझ लिया करे कि तमाम ताकत अल्लाह ही को हासिल है और यह कि अल्लाह का अजाब आखिरत में उस वक्त बड़ा सख्त होगा। इस्तबर्रल्लज़ीना नतुबिहु मिनल्लज़ीना तबऊ वराउल अज़ाबा वतक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब। जब वो पेशवा जिनके पीछे ये लोग चलते रहते हैं अपने पैरोकारों से मुकम्मल बेताल्लुकी का ऐलान करेंगे और ये सब लोग अजाब को अपनी आंखों के सामने देख लेंगे और उनके तमाम बातें रिश्ते कट कर रह जाएंगे, और जिन्होंने इन पेशवाओं की पैरवी की थी वो कहेंगे काश हमें एक मरतबा फिर दुनिया में लौटने का मौका दे दिया जाए तो हम भी उन पेशवाओं से इसी तरह बेताल्लुकी का ऐलान करें जैसे उन्होंने हमसे बेताल्लुकी का ऐलान किया है। इसी तरह अल्लाह उन्हें दिखा देगा इनके अमाल उनके लिए खसरत ही खसरत बन चुके होंगे, अब वो किसी सूरत दोज़ख से निकलने वाले नहीं हैं। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगों खाओ जमीन की चीजें हलाल और पाकीज़ा। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा वन तकूनु अलल्लाहि मा ला तअलमून, और इन्नमा यअमुरुकुम, बेशक ये शैतान तुम्हें हुक्म देता है बुरे काम का और बेहयाई का और झूठ का, और झूठ लगाता है यानी अल्लाह ताला पर वो बातें बांधता है। वन तकूलू, और तुम वो कहते हो अल्लाह पर मा ला तअलमून, जो तुम नहीं जानते। हलालन तय्यबा, हिल्लुन का असल मानी गिरा खोलने के हैं। जो चीज इंसान के लिए हलाल कर दी गई वो एक गिरा खोल दी गई और पाबंदी हटा दी गई। सैयदना सहल बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि नजात 3 चीजों पर मुनहसर है। नंबर 1 हलाल खाना, नंबर 2 फराइज अदा करना, और नंबर 3 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना। और फिर यहाँ पर जो लफ्ज तय्यब इस्तेमाल किया गया, तय्यब के मानी है शरई हलाल, जिसको अल्लाह ने तय्यब करार दिया, हलाल करार दिया, वही हलाल है। और फिर कहा गया खुतुवात शैतान, खुतवा की जमा है। इतनी मिकदार को खुतवा कहते हैं जो दोनों कदमों के दरमियान का फासला है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, यानी शैतान के अमाल, शैतानी अमाल और शैतानी अफाल के पीछे ना चलो। बिस्सूइ वल फहशा, सू वो चीज जिसको देखकर अक्लमंद शरीफ आदमी को दुख हो, ऐसी बुराई।
अक्ल वाला उसको बुराई समझेगा, और फाहशा कहते हैं बेहयाई के काम को। सूद से मुराद होता है मासियत, गुनाह, और ये गुनाह कोई भी हो सकता है। और फाहशा से मुराद कबीरा गुनाह, फहशगोई, बद कलामी, हराम कारी, सब फहश में आ जाता है। तो बेटा आज और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आंखों के सामने आयात गुजर रही है, हमने पूरी कोशिश करनी है इस रमजान कि हमने हलाल और तैयब खाना है, शैतान की कदमों की पैरवी नहीं करनी, यानी ऐसे अमाल और अफाल नहीं करने जो अल्लाह ताला की नाफरमानी का बायस बन जाए। आयत नंबर 170 में कहा गया व इज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, और जब कोई उनसे कहते हैं कि ताबेदारी करो उस हुक्म की कि जो नाज़िल फरमाया अल्लाह ने, तो कहते हैं हरगिज़ नहीं हम तो ताबेदारी करेंगे उसकी जिस पर दिखाया हमने अपने बाप दादाओं को, भला अगरचे उनके बाप दादा ना समझते हो कुछ भी और ना जानते हो सीधी राह। और मिसाल उन काफरों की ऐसी है जैसे पुकारे को शख्स ऐसी चीज को जो कुछ ना सुने सवाए पुकारने और चलाने के, सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला याकिलून, वो बहरे हो गए, गूंगे हैं, अंधे हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह, ए ईमान वालो खाओ पकीदा चीजें जो रोजी दी हमने तुमको, और शुक्र करो अल्लाह का अगर तुम इसी के बंदे हो। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा, इसने तुम पर यही हराम किया मुर्दा जानवर और लहू और गोश्त और सूर, और जिस जानवर पर नाम पुकारा जाए अल्लाह के सिवा, फिर जो कोई बेख्तियार हो जाए तो ना नाफरमानी करे ना ज्यादती करे, उस पर कोई कुछ गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। हराम खाने की इन आयात में ममानत की गई है। क्यों? इसलिए कि जब इंसान हराम खाता है तो हराम खाने से उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक शख्स बहुत तवील सफर करके परेशान हाल अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ फैलाता है, या रब है, मगर उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी गजा हराम, इन हालात में उनकी दुआ कैसे कबूल होगी? इसलिए हलाल के लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है। बस हम कहते हैं ना कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। क्यों कबूल नहीं होती? हो सकता है कि हमारा खाना हलाल ना हो, हम हराम खाते हो, अल्लाह ना करे, लेकिन बस आपका ऐसा होता है कि दुआओं की कबूलियत में रुकावट का बायस बन जाते हैं हराम खाना। इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका वागनिना बिफज़लिका अम्मन सिवा, या अल्लाह हमें हलाल और पकीदा रिज़्क अता कर दे और अपने फजल से हमें गनी कर दे। तो इस रमजान हम अपनी दुआओं में इस दुआ को भी जरूर लेके आए कि या रब हमारे माल को पकीजा कर और हरामकारी से बचा। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरूना बिही समनन कलीला, बेशक जो लोग छुपाते हैं जो कुछ नाज़िल की अल्लाह ने किताब और लेते इस पर थोड़ा सा मोल, और नहीं वो भरते अपने पेट में मगर आग, और ना बात करेगा अल्लाह उससे क़यामत के दिन, और ना पाक करेगा उनको, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उलाइका लज़ीना इश्तरौ ज़लालता बिल हुदा, और यही लोग जिन्होंने खरीद लिया गुमराही को हिदायत के बदले और अज़ाब बदले बख्शिश के, तो किस कदर सब्र करने वाले हैं दोज़ख पर। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, इस वास्ते कि अल्लाह ने नाज़िल फरमाई किताब सच्ची, और जिन्होंने इख्तिलाफ डाला किताब में बेशक वो ज़िद में पड़े हुए हैं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी कुछ ये नहीं कि वो करो अपना मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ, लेकिन बड़ी नेकी तो ये है। आज हम बड़ी नेकी को देखते हैं, वो कौन सी ऐसी नेकी है जो बड़ी बड़ी नेकियां बन जाती हैं? सबसे पहले किसका जिक्र किया गया? मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, वल यौमिल आखिरी, और क़यामत के दिन को मानता है, वल मलाइकती, और फरिश्तों पर और किताबों पर और पैगंबरों पर, और दे माल उसकी मोहब्बत में रिश्तेदारों को और यतीमों को और मुहताजों को और मुसाफिरों को और मांगने वालों को, और गर्दनें छुड़ाने में, और नमाज कायम करते हैं
वअक़ामस्सलाह वअतज़्ज़का, और नमाज कायम करने वाले, ज़कात अदा करने वाले और पूरा करने वाले अपने इकरार को जब वो अहद करे, और सफर करने वाले सख्ती में और तकलीफ में और लड़ाई के वक्त, यही लोग सच्चे हैं। उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इस आयत को आयते बीर कहा जाता है। बीर कहते हैं बहुत बड़ी नेकी को, वसी नेकी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वसी नेकी में इतने सारे कमात पढ़ लिए। जो चाहता है कि वो वसी नेकियां करे, बड़ी बड़ी नेकियां करे, वो इस आयत को पढ़ के नेकियां करना शुरू कर दे, क्योंकि इसका आगाज ईमान से हुआ और इसका इख्तिताम सच से हो गया। सच्चे लोग, यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। जो इस आयते बिर को पालेगा वो अपनी जिंदगियों को हर गम से दूर कर लेगा। खुशियां उसका मुकद्दर बन जाएंगी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को अल्लाह के इताअत में लगा दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ऐ ईमान वालो, तुम पर किसास करना बराबर है मकतूलों में। आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। फिर जिसको माफ किया जाए और उसके भाई की तरफ से कुछ भी, तो ताबेदारी करनी चाहिए दस्तूर के मुताबिक और अदा करना है उसको खूबी के साथ। ये आसानी होती है तुम्हारे रब की तरफ से और मेहरबानी। फिर जो ज्यादती करे इस फैसले के बाद, उसके लिए अजाब दर्दनाक है और तुम्हारे वास्ते कसास में बड़ी जिंदगी है। ऐ अक्लमंदो, ताकि तुम बचते रहो। या उलिल अलबाब, अक्ल वालों से मुखातिब है अल्लाह रब्बुल इज्जत। हम अपने आप को देखिए, क्या हम अक्ल वाले हैं? और अक्ल वालों को क्या कहा जा रहा है? इसास की लफ्ज़ी मानी मुमासलत। मुराद ये है कि जितना जुल्म किसी ने किसी पर किया, इतना ही बदला लेना दूसरे के लिए जायज है। इससे ज्यादा करना जायज नहीं है। जैसे कि सूरतुल बकरा में, सूरत नहल में क्या आता है? फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, उतना ही करो जितना किसी ने किया। और किसास कत्ल, यानी कत्ल अमद से मुराद क्या मतलब है? कत्ल अमद की इरादा के साथ अगर किसी को मारता है और उसको वो चोट आ जाती है या कत्ल कर दिया जाता है, तो उसको जान के बदले जिसका जान लेना जायज है। किसास के बदले किसास है। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, फर्ज किया गया तुम पर जब हाजिर हो किसी को तुम में मौत, बशर्ते कि छोड़े कुछ माल वसीयत करना है। लिल वालिदैनी, माँ बाप के लिए, वल अक़रबीन, और रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ, इंसाफ के साथ। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये हक हुक्म है, ये हक है मुत्तकियों पर। फिर जो कोई बदल डाले वसीयत को बाद इसके कि जो सुन चुका, तो उसका गुनाह उन्हीं पर है जिन्होंने उसको बदल डाला। बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। फिर जो कोई खौफ करे वसीयत करने वाले से तरफदारी का या गुनाह का, फिर उनमें बागम सुलह करा दे, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो, रोजे फर्ज कर दिए गए तुम पर, जैसा फर्ज किया गया था तुमसे पहले लोगों पर। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अय्यामुम मादूदात, चंद रोज है गिनती के। रमजान के महीना गिनती के चंद रोज हैं। कुछ वक्त हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे दिया। फमन काना मिनकुम मरीज़ा, फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या मुसाफिर हो, तो उन पर की गिनती है और दिनों से। और जिनको ताकत है रोजे की, उनके जिम्मे बदला है एक फकीर का खाना। फिर जो कोई खुशी से करे नेकी, तो अच्छा है इसके वास्ते, और रोजा रखो तो बेहतर है तुम्हारे लिए, अगर तुम समझ रहे हो। सोम की लफ्ज़ी मानी होते हैं इंसाफ यानी रुकने बचने के, और इस्तिलाही शरह में खाने पीने और औरत से मुबाशरत करने से रुकने और बाज रहने का नाम सोम है। बशर्ते कि वो तुलुआ सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मुसलसल रुका रहे। और नियत रोजे की भी करनी चाहिए। और क्या कहा गया? रोजे का मकसद क्या है? मुत्तकी बनना, तकवा। जो रोजा रख के अपने आप को हर उस चीज से मुस्तगना कर देता है जिसका हुक्म रब्बे ताला ने दे दिया, तो रोजा उसके लिए ढाल बन जाता है। रोजा उसके लिए जहन्नुम से खलासी का जरिया बन जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर फर्ज कर दिया गया रोजा रखना। अल्लाहु अकबर। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन,
महीना रमजान का जिसमें नाजिल हुआ कुरान, हदायत है वास्ते लोगों के और दलीलें रोशन है राह पाने की, हक को बातिल से जुदा करने की। तो जो कोई पाए तो में से इस महीने को तो जरूर रखे इसके रोजे, और जो कोई हो बीमार या मुसाफिर तो इसकी गिनती पूरी करनी चाहिए। और दिनों में अल्लाह चाहता है तुम पर आसानी और नहीं चाहता तुम पर दुश्वारी, और इस वास्ते कि तुम पूरी गिनती करो ताकि बड़ाई करो अल्लाह की इस बात पर कि तुमको हदायत दी और ताकि तुम एहसान मानो। करीब, और जब सब तुमसे पूछे मेरे बंदे मुझको तो उनको बताओ मैं करीब हूँ। कबूल करता दुआ मांगने वाले की दुआ को। तब मुझसे दुआ मांगे तो चाहिए कि वो हुक्म माने मेरा और यकीन लाए मुझ पर ताकि नेक राह पर आ जाए। अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आता है कि वो अफ्तार के वक्त सब घर वालों को जमा किया करते थे और दुआ किया करते थे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि जब मेरे बंदे मुझसे ए नबी तुम्हारे बारे में तुमसे पूछे मेरे बारे में तुमको क्या कहो, मैं करीब हूँ। आइए हमारा रब हमारे बिल्कुल करीब है, फौरन अपने रब से मांग ले ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमारे बिल्कुल करीब है, शारक से भी ज्यादा और यकीन से मांगे ताकि हमारे अंदर वो ईमान पैदा हो जाए, वो यकीन। क्योंकि यकीन एक ऐसी कैफियत है ना जो इंसान और रब को जोड़ देती है और एक ताल्लुक कायम कर देती है। फाइन्नी करीब, और फाइन्नी करीब में दुआ आहिस्ता मांगो या खुफिया या बुलंद, अल्लाह करीब है। और यहाँ पर पीछे जो कि रोजे का तज़किरा हो रहा था तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि रोजादार इफ्तार के वक्त जब भी दुआ करता है तो उसकी दुआ को कबूल किया जाता है। तो इस रमजान खास तौर पर हमें तमाम करना दुआओं का, और खास तौर पर सहज इफ्तारी के वक्त हम खूब दुआएं करेंगे। उहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम रफस इला निसाइकुम, हलाल हो तुमको रोजे की रात में बेहिजाब होना अपनी औरतों से, वो पोशाक है तुम्हारी, वो लिबास है तुम्हारे और तुम लिबास हो उनका। अलिमल्लाहु अन्नकुम, अल्लाह को मालूम है कि तुम खयानत करते थे अपनी जानों से, तो माफ किया तुमको, दरगुजर किया तुमसे। फिर मिलो अपनी औरतों से, तलब करो इसको जो लक दिख दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और खाओ और पियो जब तक कि साफ नजर आए तुमको धारी सुबह की जुदा धारी स्याह से। फिर पूरा करो रोजे को रात तक, और ना मिलो औरतों से जब तक कि तुम इत्तिकाफ करो मस्जिदों में। ये हदें बांधी हुई है अल्लाह की, सो इनके नजदीक ना जाओ। इसी तरह बयान फरमाता है अल्लाह अपनी आयतें लोगों के वास्ते ताकि वो बचे हैं। इत्तिकाफ की अहमियत का भी यहाँ से पता चलता है, और एक हुक्म कि रमजान की रातों में जमा करना जायज नहीं, और ये खास हुक्म यहाँ पर औरतों के हवाले से दे दिया गया। इसके अलावा इत्तिकाफ की चूंकि इतनी ज्यादा अहमियत है, इत्तिकाफ के लिए मतलब क्या होता है? अपने आप को किसी चीज के साथ रोक रखना ना। इत्तिकाफ क्या मानी होगा? कोई खास वक्त, महसूस वक्त जिसमें इंसान अपनी इबादत के लिए अपने आप को सर्व कर देता है। और इत्तिकाफ का मतलब बैठना, यानी मशगूल होके कुछ वक्त के लिए अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग कर लेना। अल्लाह अकबर। तो इस रमजान इत्तिकाफ में अगर हम लंबा लंबा इत्तिकाफ नहीं कर सकते ना, कि हम 19 में 20 दिन का भी इत्तिकाफ का आता है, और इत्तिकाफ का आखिरी अशरे में भी आता है कि आप सब क्या करते थे, तो इत्तिकाफ चंद लम्हों चंद घंटों कुछ वक्त का भी हो सकता है। आइए इस रमजान इत्तिकाफ की बुनियाद करें ताकि इसके अजर को भी पा सके। अगर वो बाज ना आए तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फिर अगर लड़ो और लड़ो उनसे यहाँ तक कि बाकी ना रहे फसाद, और हुक्म रहे अल्लाह ताला ही का। फिर अगर वो बाज आ जाए तो किसी पर ज्यादती नहीं मगर जालिमों पर। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुर्मत वाला महीना बदले हुर्मत वाले महीने के, और अदब रखने में बदला है। तो जिसने तुम पर ज्यादती की तुम इस पर ज्यादती करो जैसे उसने ज्यादती की तुम पर। अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह से, और जान लो कि अल्लाह साथ है परहेजगारों की, अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। और खर्च करो अल्लाह की राह में और ना डालो अपनी जान को हलाकत में, और नेकी करो बेशक अल्लाह ताला दोस्त सकता है नेकी करने वालों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर हम अपना दोस्त बनाना चाहते हैं
इस रमजान भरपूर में क्या करेंगे। वातिमुल हज वल उम्रह लिल्लाह, और पूरा करो हज और उम्रा को अल्लाह के लिए। फिर अगर तुम रोक दिए जाओ तुम पर है तो कुछ के मुयस्सर हो कुर्बानी में से, और हिजामत ना करो अपने सरों की जब तक ना पहुंच चुके कुर्बानी अपने ठिकाने पर। फिर जो कोई तुम में से हो बीमार हो या उसको तकलीफ हो सर की तो बदला दे रोजे या खैरात या कुर्बानी। फिर जब तुम्हारी खातर जमा हो तो जो कोई फायदा उठाए उम्रा मिलाकर हज के साथ उस पर है जो कुछ मुयस्सर हो कुर्बानी से। फिर जिसको कुर्बानी ना मिले तो रोजे रखे 3 हज के दिनों में और 7 रोजे जब वो लौट आए। ये 10 रोजे हुए पूरे। हुक्म उसके लिए है जिसके घर वाले ना रहते हो मस्जिद हराम के पास। डरते रहो अल्लाह से और जान लो कि बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है। अल हज अशहुर मालूमात, हज के चंद महीने हैं मालूम। फिर जब जिस शख्स ने लाजिम कर लिया उनमें हज तो बेहिजाब होना जायज नहीं औरत से, और ना गुनाह करना और ना झगड़ा करना हज के जमाने में। और जो कुछ तुम करते हो नेकी अल्लाह उसको जानता है। और ज़ादे राह ले लिया करो, ये बेशक बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। और मुझसे डरते रहो ऐ अक्लमंदो, कुछ गुनाह नहीं तुम पर, लेकिन तलाश करो फजल अपने रब का। फिर जब तवाफ के लिए पलटो अरफात से तो याद करो अल्लाह को नजदीक मशअल हराम के, और इसको याद करो जिस तरह तुमको सिखलाया। और बेशक तुम फिर से पहले नवाकिफ। फिर तवाफ के लिए फिरो जहाँ से सब लोग फिरे, और मकसद चाहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब पूरे कर चुको अपने हज के काम को तो याद करो अल्लाह को जैसे तुम याद करते हो अपने बाप दादा को, बल्कि इससे भी ज्यादा याद करो। फिर कोई आदमी तो कहता है हमारे रब दे हमको दुनिया में, इसके लिए आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और कोई उनमें से कहता है रब्बना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ऐ हमारे रब दे हमको दुनिया में खूबी और आखिरत में भलाई, और बचा हमको दोज़ख के अजाब से। उन्हीं लोगों के वास्ते हिस्सा अपनी कमाई से। अल्लाह जब हिसाब लेने वाला है वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और याद करो अल्लाह को गिनती के चंद दिनों में। फिर जो कोई जल्दी चला गया 2 ही दिन में उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो कोई रह गया उस पर कुछ गुनाह नहीं। जो कोई डरता है और डरते रहो अल्लाह से, और जान लो बेशक तुम सब उसी के पास जमा किए जाओगे। हम सबको किधर जमा होने? अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। तो क्या अब इसकी तैयारी की है? क्या तैयारी की? तो इस रकूम में तैयारी के लिए क्या कहा जा रहा है? तकवा, नेकियों का ज़ादेरा बांध लो, नेकियों के एक थैला बना लेना चाहिए। जैसे हमने कभी किसी सफर पे जाना हो ना तो हम बैग की तैयारी पहले से शुरू कर देते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें जो हमारे सफर के लिए जरूरी होती हैं इसको रखने लगते हैं। आइए आज और इस साल का रमजान इस नेकी के साथ करें कि हमने भी अपने बैगों में नेकियां भरनी है। कौन कौन सी नेकियां लेके जाएंगे? सब्र, ईमान, तकवा, खलूस, ये सारी नेकियां, ये सब की सब नेकियां हम अपने साथ अपने बैग में भरते चले जाएं। तस्बीहात, जिक्र, कुरान, और सबसे ज्यादा जो तिलावत हम करेंगे, जिसका जो जिक्र करेंगे वो तिलावत कुरान है, क्योंकि रमजान का महीना कुरान का महीना है। और मिनन नासी में युजिबुका कौलु फिल हयात दुनिया, और बाज आदमी वो हैं कि पसंद आती है तुझको इसकी बात दुनिया की जिंदगानी के कामों में, और गुमान करता है अल्लाह को अपने दिल की बात पर, और वो सब झगड़ालू है। और जब फिरे तेरे पास से तो डरता है, फिर मुल्क में इसमें खराबी डाले और तबाह करे खेतियां, और जाने अल्लाह नापसंद करता है फसाद करने वाले को। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो माता करे इसको गरूर और गुनाह पर, तो काफी है इसको दोज़ख, और बेशक बहुत बुरा ठिकाना है। और लोगों में एक शख्स वो है जो बेचता है अपनी जान को अल्लाह की रजा के लिए। वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, और अल्लाह नहायत मेहरबान है अपने बंदों पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों दाखिल हो जो इस्लाम में पूरे, और बच चलो कदमों पर शैतान के। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा सही दुश्मन है। फिर अगर तुम बचलने लगो बाद इसके कि पहुंच चुके तुमको साफ हुक्म, तो जान रखो बेशक अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। क्या वो इसी की राह देखते हैं कि आए उन पर अल्लाह अबर के साहिबानों में फिरते और तय हो जाए किस्सा, और अल्लाह ही की तरफ है लौटेंगे सब, अल्लाह ही की तरफ सबको लौट कर जाना है। अल्लाह अकबर। यानी आले ईमान को क्या कहा जा रहा है? उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। सिल्मी के 2 मानी होते हैं,
ایک ہوتا ہے سلوح اور دوسرا ہوتا ہے اسلام میں داخل ہونا. سلح اور اسلام یعنی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے سے مراد کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دماغ، سب کا سب دار اسلام اور اطاعت الہی کے اندر داخل ہو جائے. پاؤں چلے تو اللہ کے حکم سے چلے، دماغ میں یادیں ہو تو اللہ کی یاد ہو، دل مطمئن ہو تو اللہ کی یاد کے ساتھ مطمئن ہو، آزار جوارے کا عمل اس کے ساتھ ساتھ ہو. یہ ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا، یعنی مکمل نظام حیات. اس دین اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لینا. سل بنی اسرائیل کم آتیناکم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھی، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر اس کو بدل ڈالے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اور جن لوگوں نے اپنا کفر اپنا لیا ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عزت عطا کرتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیروکار تھے. پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکالا. پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جس سے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے. اللہ کس کو چاہتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے اس کو راہ راست تک پہنچاتا ہے. جیسے کہ سورۃ یونس کے اندر آتا ہے وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. اور سورۃ مومنون میں کیا آتا ہے؟ ایک جماعت ہی ہے نا، یہ تمہاری جماعتوں میں ایک جماعت ہے جو حق پر قائم رہنے والی ہے اور اللہ سے ڈرنے والی ہے. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، مجھے سے ڈرو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات؟ کیا تم یہ سمجھتے کہ جنت میں چلے جاؤ گے بغیر مشقت کے؟ حالانکہ ابھی کچھ مشقت تو اٹھائی ہی نہیں، کیونکہ تم ہنوز ان مسلمان لوگوں کا عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے گزرے ہوئے ہیں. ان پر مخالفین کے سبب ایسی ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب سے ان کو یہاں تک جنبشیں ہوئی کہ اس زمانے کے پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بے قرار ہو کر بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اب کب آئے گی، جس پر ان کو جواب سے تسلی کی گئی کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مدد بہت نزدیک آنے والی ہے. اللہ ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک ماذا ينفقون، وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کرے، کہہ دو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تو ماں باپ کے لیے اور قرابت داروں کے لیے ہے اور یتیموں کے لیے اور محتاج اور مسکین اور مسافروں کے لیے. وما تفعلوا، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی جو تم نیکی کے کام کرو گے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض ہو کہ تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو، تم پر دشمنوں کے وقت جنگ کرنا فرض قرار دے دیا گیا حالانکہ وہ تم پر گراہ ہے. اور یہ عین ممکن ہے تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور ایسا حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے. لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور ان کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے. اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو دنیا تمہارے دین چھوڑنے پر آمادہ کر دے. اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مرے
تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے. ایسے لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں, اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں. آئیے رب سے اس کی رحمت مانگیے اور جہد اور کوشش کے ساتھ اپنی زندگی کو نیکیوں کے ساتھ بھر دیں. یسألونک عن الخمر والمیسر, تو اس سے پوچھتے ہیں لوگ آپ سے شراب اور خمر کے بارے میں دریافت کرتے ہیں, خمر اور میسر کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے ان دونوں چیزوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں, اور وہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہیں. کیا مطلب ہے؟ ابتدائے اسلام میں رسوم جہالت میں کیا تھا؟ شراب بڑی عام تھی. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ شراب کے کچھ فائدے نقصانات, اور یہ کہا گیا کہ نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ شراب جو ہے وہ کیا کرتی ہے, شراب کا اگر ہم دیکھا جائے تو شراب کے جو انسان کو اس سے نقصان ہوتا ہے, سب سے پہلے اگر فائدہ دیکھا جائے نا تو وقتی فائدہ اگر دیکھا جائے تو لذت ملتی ہے, فرحت ملتی ہے, اور وقتی طور پر نمبر 2 قوت حاصل ہوتی ہے, اور نمبر 3 رنگ بھی جو ہے نا وہ صاف کرتے اس سے ہوتا ہے شراب سے. لیکن اس کے نقصانات اس سے بہت زیادہ ہیں. نقصانات کیا ہے؟ یہ رفتہ رفتہ معدے کے فعل کو فاسد کر دیتی ہے, یعنی معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, کھانے کی خواہش کم کر دیتی ہے. اور ایک جرمن ڈاکٹر نے اس کی جب سرچ کی تو یہ کہتا ہے کہ جو شخص شراب کا عادی ہوتا ہے وہ 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسی ہو جاتی ہے جیسے 60 سال کا بوڑھا ہے. اور شراب کے نقصانات میں اگر دیکھا جائے تو وہ رگیں جن کے ذریعے سارے بدن میں روح کو خون پہنچتا ہے وہ سخت ہو جاتی ہے. اور پھر شراب کا ایک فائدہ کے علاوہ اس کا نقصان کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے. اور بس اوقات شراب میں آ کر آدمی اپنا پوشیدہ راز بھی بیان کر دیتا ہے. شراب کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو کھلونا بنا دیتی ہے, جس کو دیکھ کر بچے بھی ہنستے ہیں, اور اس کو کہا جاتا ہے ام الخبائث, ام الفواحش. تو یہاں پر پھر شراب کی حرمت کس کو, شراب کا جو شروع میں شراب عرب میں اس کا رواج تھا اس کو ختم کر دیا گیا. میسر کا لفظ جو ہے نا اس کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں, اور یاسر کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو. میسر بیٹا عرب میں بھی کچھ مختلف قسم کے جوئے جس کو کہا جاتا ہے نا جوؤں کا رواج تھا, لاٹری, یہ سب جو, اور اس کے علاوہ وہاں پر رواج عرب میں یہ تھا کہ اس دور میں اونٹوں کو ذبح کیا جاتا اور اس کے ساتھ جوا کھیلا جاتا, اور اس کو کچھ کو حصہ ملتا اور کچھ کو حصے محروم کر دیا جاتا. تو میسر میں اگر ہم دیکھا جائے تو وہ ساری چیزیں جوئے میں آ جاتی ہیں جو انسان کے وقت کی بربادی, جیسے بچوں کے جو کھیل ہیں جن میں اخروٹوں وغیرہ کے ساتھ شطرنج بازی, چوسر, یہ ساری چیزیں اس میں حرام قرار دے دی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو, ہمیں نسلوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, کہہ دیجئے اللہ کے خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں, آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. اللہ اسی طرح اپنے کام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو, دنیا کے بارے میں بھی, آخرت کے بارے میں بھی. اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے, اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو کچھ حرج نہیں, کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے, کون سنوارنے والا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا, لیکن اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے, حکمت بھی کامل. اور مشرک عورتوں سے اس وقت نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. یقیناً ایک مومن باندھی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے. وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو, اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ تب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے, اور مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو. یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں, جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے, اور اپنے کام لوگوں کو سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور تجھ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں, آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے, لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں.
اور سے قربت یعنی جمع نہ کرو. ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بشک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کرے, اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہے. تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں, لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو, اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ, اور مت بناؤ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے ذریعے سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقویٰ کے اور اصلاح اور خلق کے کام کو, یعنی اللہ کے نام کی قسم نہ کھاؤ کہ ہم یہ نیک کام نہ کریں گے, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو زبان تو کیا کرو, بتصلح بین الناس, لوگوں میں صلح کروانا, آپس میں صلح کروانے والے بن جاؤ, پرہیزگاری اختیار کرو. واللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا, البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا, اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. للذین یؤلون من نسائہم, اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں, ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. یعنی اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے, اور اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں, اور اگر وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ یعنی حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائے. اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہے تو ان کے حق میں ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجت میں واپس لے لیں, اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں. ہاں مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے, اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حق حاصل ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ اللہ رب العزت نے مرد کے مقام کو عورتوں سے زیادہ کر دیا, مرد کو قوام بنا دیا. اب جب مرد قوام ہے اور اللہ نے مرد کو ہی قوامیت حق دی ہے تو عورت کو اس بات پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا عورت کے حق میں جاتا ہے, اور کو اس بات کو خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ یہ اللہ نے ذمہ داری مرد کو دیا ہے. الحمدللہ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجت میں روک رکھو, یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو, اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو. اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا, اور اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ, اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے لوگوں انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں, بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں. ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو بھی کی جا رہی ہے جو اللہ جو بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے. اللہ جانتا تم نہیں جانتے. یعنی نکاح اور طلاق کو کھیل مت بناؤ. یہ کہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ جب چاہے نکاح کر لیا جائے اور جب چاہے اسے میں آ کے طلاق دے دی جائے. وَالْوِلْدَانُ يُرْضِعْنَ, اور ماں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائے. یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں, اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ماں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے. ہاں کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی, نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے. اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. پھر اگر وہ دونوں یعنی والدین آپس کی رضامندی اور بعد مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے یعنی کسی دائیں سے دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں, جبکہ تم نے اجرت ٹھہرائی تھی وہ دودھ پلانے والی کو بھلے طریقے سے دے دو. اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے. مدت رضاعت کا یہاں پہ حکم دیا گیا.
वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा, और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और बीवियां छोड़कर जाएं, तो वो बीवियां अपने आप को 4 महीने 10 दिन इंतजार में रखेंगी। फिर जब वो अपनी इद्दत को मियाद को पहुंच जाए तो अपने बारे में जो कार्रवाई मसलन दूसरा निकाह कायदे के मुताबिक करे तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह से वो पूरी तरह बाखबर है। और इद्दत के दौरान अगर तुम औरतों को इशारे कनाए में निकाह का पैगाम दो या उनसे निकाह का इरादा दिल में छुपाए रखो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह जानता है कि तुम इनसे निकाह का ख्याल तो दिल में लाओगे, लेकिन इनसे निकाह का दो तरफा वादा मत करना। इल्ला ये कि मुनाफिक तरीके से कोई बात कह दो, और निकाह का अकद पक्का करने का उस वक्त तक इरादा भी मत करना जब तक कि इद्दत की मुकर्रर मुद्दत अपने मियाद को ना पहुंच जाए। और याद रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह उसे खूब जानता है, लिहाजा इससे डरते रहो। और याद रखो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा बुर्दबार है। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निसा मा लम तमस्सूहुन्ना, तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं, तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों को ऐसे वक्त तलाक दो जबकि अभी तुमने उनको छुआ भी ना हो और ना कोई महर उनके लिए मुकर्रर किया हो, और ऐसी सूरत में उनको कोई तोहफा दो। कुछ खास शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक भले तरीके से ये तोहफा दे। ये नेक आदमियों पर एक लाजमी हक है। और अगर तुमने उन्हें छूने से पहले इस हालत में तलाक दी हो जबकि उनके लिए निकाह के वक्त कोई महर मुकर्रर कर लिया था, तो जितना महर तुमने मुकर्रर किया था उसका आधा देना वाजिब है। इल्ला ये कि वो औरतें रियायत करें और आधे महर का भी मुतालबा ना करें, या वो शोहर जिसके हाथ में निकाह की गिरा है रायत करे और पूरा महर दे दे। और अगर तुम रायत करो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है। और आपस में फराग दिली का बर्ताव करना मत भूलो, जो तुम करते हो अल्लाह ताला यकीनन उसे देख रहा है। हाफिज़ु अलस्सलाह वस्सलातिल वुस्ता, तमाम नमाजों का पूरा ख्याल रखो, और खास तौर पर बीच की नमाज, असर की नमाज, और अल्लाह के सामने इबादत फरमाबरदार बनकर खड़े हुआ करो। और अगर तुम्हें दुश्मन का खौफ लाक हो तो खड़े खड़े या सवार होने की हालत में ही नमाज पढ़ लिया करो। फिर जब तुम अमल की हालत में आ जाओ तो अल्लाह का जिक्र तरीके से करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, इससे पहले तुम ना वाकिफ थे। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा, और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और अपनी बीवियां पीछे छोड़ जाएं तो अपनी बीवियों के हक में ये वसीयत कर जाया करें कि एक साल तक तरीके से नफका वसूल करने का फायदा उठाएंगे और उनको शोहर के घर से निकाला नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो खुद निकल जाए तो अपने हक में कायदे के मुताबिक जो कुछ भी करे इस पर तुम पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह साहब इक़्तिदार भी है और साहब हिकमत भी है, और मुतल्लिका औरतों को कायदे के मुताबिक फायदा पहुंचाना मुत्तकियों पर इनका हक है। अल्लाह अपने काम इसी तरह वजाहत से तुम्हारे सामने बयान करता है ताकि तुम समझदारी से काम लो। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, क्या तूने देखा नहीं उन लोगों को, या तुमने लोगों का हाल मालूम नहीं है जो मौत से बचने के लिए अपने घरों से निकल आए थे, और वो हजारों की तादाद में थे। चुनांचे अल्लाह ने उनसे कहा मर जो, फिर उन्हें जिंदा किया। हकीकत यह कि अल्लाह लोगों पर बहुत फजल फरमाने वाला है, लेकिन लोग अक्सर शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह के रास्ते में जंग करो और यकीन रखो अल्लाह खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला के समीअ बसीर होने का यहाँ पे तज़किरा किया गया। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, और शख्स ऐसा जो कर्ज दे अल्लाह को अच्छा कर्ज, फिर दुगना करे अल्लाह को दुगना कर दे अल्लाह इसको कई गुना और गुना वापस लौटाए। कौन है अल्लाह को जो अच्छे तरीके पर कर्ज दे ताकि वो इसकी इस मफाद इतना बढ़ाए चढ़ाए कि वो बदरजा ज्यादा हो जाए। और अल्लाह ही तंगी पैदा करता है, वसअत देता है, और इसी की तरफ तुमको लौटाया जाना है। अल्लाह को कर्ज देने से क्या मुराद है? यानी अल्लाह के बंदों को कर्ज देना, वरना अल्लाह को कर्ज की कोई हाजत नहीं है। और हदीस में आता है जो मुसलमान दूसरे मुसलमान को कर्ज से देता है, ये कर्ज देना अल्लाह के रास्ते में इस माल के 2 दफा सदका करने के बराबर इसको अजर मिलेगा, इतना अजर है। और युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना से मुराद कौन सा कर्ज है? नेक अमाल का, इसी कर्ज में आते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना। अल्लाह अकबर। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बादि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिल्लाह, क्या तुम्हें मूसा के बाद बनी इसराइल के गिरोह के इस वाक़े का इल्म नहीं हुआ जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा था कि हमारा एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि इसके झंडे तले अल्लाह के रास्ते में जंग कर सके। नबी ने कहा क्या तुम लोगों से ये बात कुछ बाइद है?
کہ جو तुम पर जंग फर्ज की जाए तो तुम ना लड़ो। उन्होंने कहा भला हमें क्या हो जाएगा जो अल्लाह के रास्ते में जंग ना करें। हालांकि हमें अपने घरों अपने बच्चों के पास से निकाल बाहर किया गया। फिर हुआ यही कि जब उन पर जंग फर्ज की गई तो उनमें से थोड़े लोगों को छोड़कर बाकी सब पीठ फेर गए। और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और उनके नबी ने इनसे कहा अल्लाह ने तुम्हारे तालूत को बादशाह बनाकर भेजा है। कहने लगे भला इसको हम पर बादशाह करने का हक कहाँ से आ गया। हम इसके मुकाबले में बादशाह के ज्यादा मुस्तहिक हैं और इसको तो माली वुसअत भी हासिल नहीं है। नबी ने कहा अल्लाह ने उनको तुम पर फजीलत देकर चुना है और उन्हें इल्म और जिस्म में तुमसे ज्यादा वुसअत अता की है। और अल्लाह अपना मुल्क किसको चाहता है देता है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला बड़ा इल्म रखने वाला है। और इनसे इनके नबी ने ये भी कहा तालूत की बादशाह की अलामत यह है कि तुम्हारे पास वो समझूर वापिस आ जाएगा जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सकनियत का समान है। और मूसा और हारून ने जो अशिया छोड़ी हैं उनमें से कुछ बाकी मानदा चीजें हैं। फरिश्ते उठाए हुए लाए उनको रिश्ते उठाए हुए लाए। अल्लाह ताला की आजमाइश है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे चाहता है अपने बंदों की आजमाइश करता है। इन पर अल्लाह ताला ने ऐसे बादशाह को तालूत और जलूत के किस्से में अगर आप देखिए जाए तो बनी इस्राइल पर ये सख्ती आई। बदअमालियों की वजह से उन पर ये सख्ती आ गई। इस चीज से उनको मना किया जा रहा है। दिल का आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक, ये आयतें हैं अल्लाह की, हम तुझको सुनाते हैं ठीक ठीक और तू बेशक हमारे रसूलों में से है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी है कि हमने आज के पारे को भी कंप्लीट किया अल्लाह की तौफीक से। अल्हम्दुलिल्लाह।